Hello everyone, welcome back to my channel, Concept Classroom with Abha. Imagine a country where people stop trusting each other because of differences in religion, language, caste, or culture. Can such a nation truly progress? Today we are going to understand why national integration is not just a chapter in our textbook, but the foundation of a strong and united India. जरा सोचिए अगर एक देश के लोग धर्म, भाषा, जाति या संस्कृति के कारण एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो क्या वो देश वास्तव में आगे बढ़ सकता है? आज यही हम समझेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण सिर्फ एक किसी किताब का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एक मजबूत और एकजुट भारत की नींव है। Before wasting any time, let's get started. National integration is the process of uniting diverse communities within a country to foster a shared sense of identity, belonging, and cooperation while respecting cultural, linguistic, and religious diversity. National integration is a vital concept that emphasizes unity and cohesion of a diverse country like India, which is home to various cultures, languages, religions, and traditions. It's all about fostering a sense of oneness, togetherness among the people of a nation, regardless of their differences. राष्ट्रीय एकीकरण किसी देश के भीतर विविध समुदायों को एकजुट करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए साझा पहचान, अपनेपन और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना होता है। भारत जैसे विविध देश में राष्ट्रीय एकीकरण एकता और सामंजस्य पर जोर देता है। यह मतभेदों के बावजूद लोगों में एकता की भावना पैदा करता है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशंस और पर्सपेक्टिव क्या है। नेशनल इंटीग्रेशन refers to the conscious effort to create unity among citizens despite differences in religion, language, caste, culture, and reason. It emphasizes social harmony, equality, and a collective sense of citizenship. Scholars have defined it in various ways. राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति और क्षेत्र के मतभेदों के बावजूद नागरिकों में एकता का सचेत प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट। यह सामाजिक समरसता, समानता और सामूहिक नागरिकता पर बल देता है। कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं फिलोसफर्स की। एच के ज्ञानी व्यूज इट एज अ सोशियो साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रोसेस फॉस्टरिंग सॉलिडारिटी। एच ए गनी कहते हैं कि यह एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जो एकजुटता को बढ़ावा देती है। Dr. S. Radhakrishnan emphasizes it as a conscious that must awaken in people. डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि यह लोगों के मन में जागृत होने वाली चेतना है। रसीदुद्दीन खान says highlight the cohesion and unity without enforcing uniformity objectives. रसीदुद्दीन खान कहते हैं एकरूपता होपे बिना एकता और सामंजस्य। Importance of national integration. National integration is crucial for social stability, peace, and inclusive growth. It ensures that citizens work towards common goal, share a national identity, and actively participate in the country's development. In a diverse nation like India, integration strengthens democracy, reduces social tensions, and enhances the country's global identity as a pluralistic and peaceful state. राष्ट्रीय एकीकरण सामाजिक स्थिरता, शांति और समावेशी विकास के लिए जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक साझा लक्ष्यों के साथ काम करें और देश के विकास में भाग लें। भारत जैसे विविध राष्ट्र में यह लोकतंत्र को मजबूत करता है, सामाजिक तनाव को कम करता है और देश की पहचान को एक बहुलवादी और शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में बढ़ाता है। The need for national integration. We can also understand the need for national integration with the help of some reasons why it is important. Here are 10 important reasons. Unity in diversity. मतलब अनेकता में एकता. One of the primary reasons for national integration is to promote the idea of unity in diversity. India's diversity can be a source of strength, but it can also lead to division if not managed properly.
National integration helps bridge the gap between various communities and encourages them to coexist harmoniously. When people from different backgrounds unite, they can achieve more together than they are divided. विविधता में एकता, विविधता शक्ति है, पर प्रबंधन न तो विभाजन ला सकती है और एकीकरण समुदायों के बीच की खाई को है। Social harmony. In a diverse country like India, social harmony is of paramount importance. National integration plays a crucial role in ensuring that different communities respect and understand each other's cultures and beliefs. This, in turn, reduces the likelihood of communal tension and conflict. अलग अलग समुदाय एक दूसरे की संस्कृति और मान्यताओं का सम्मान करें, इससे सांप्रदायिक तनाव कम होता है. Economic development. National integration is closely linked to economic development when different regions and communities within a country work together for a common goal. It fosters economic growth. Infrastructure projects, trade, and investment can flow more smoothly when there is a sense of national unity. This, in turn, leads to improved living standards and a stronger economy. जब सभी क्षेत्र और समुदाय एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे का विकास बहुत तेजी से होता है और इससे जीवन का स्तर सुधरता है. Political stability. A divided nation is more susceptible to political instability. National integration helps in creating a stable political environment by reducing the potential for conflict based on identity, religion, or language. A united nation can focus on common goals such as good governance and national progress. राजनीतिक स्थिरता. विभाजन, कोई भी राष्ट्र अगर विभाजित है तो वो अस्थिर होता है. एकता से सुशासन और ग्रोथ दोनों पॉसिबल होती है. कल्चरल एक्सचेंज. National integration encourages cultural exchange among different communities. This cultural diversity enriches the collective cultural tapestry of the nation. When people from different backgrounds interact and appreciate each other's traditions, it creates a vibrant and culturally rich society. अलग अलग परंपराओं का आदान प्रदान देश की संस्कृति को और समृद्ध करता है. कल्चरल एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे देश में अलग अलग कल्चर्स हैं. हम एक दूसरे से अपने कल्चर्स को एक्सचेंज करते हैं तो हमारा ओवरऑल कल्चर बहुत इम्प्रूव होता है. National identity. A sense of national identity is essential for a country's citizens. National integration helps inculcate a feeling of belonging to a larger whole. It strengthens the emotional connection of people with their country and encourages them to work towards the betterment of nation. राष्ट्रीय पहचान. अगर आप ये सोचेंगे कि मैं किसी विशिष्ट प्रदेश का नागरिक हूं तो आप उस प्रदेश के प्रति अपनी भावनाएं शो कर रहे हैं. लेकिन अगर आप एज अ कंट्री सोचेंगे कि मैं भारत का नागरिक हूं तो आप भारत से एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप करते हैं. और जब हम अपने देश से इमोशनली कनेक्ट होते हैं एज अ होल तो हम अपने देश के लोगों के साथ मिलके उस फीलिंग को स्ट्रेंथ देते हैं कि हमारे देश की पहचान हम सब लोगों से मिलके बनती है. तो मैं भारत का नागरिक हूं, ऐसी भावना से नेशनल आइडेंटिटी और मजबूत होती है. Conflict resolution. In a diverse country like India, conflicts are bound to arise. National integration serves as a framework for peacefully resolving these conflicts. It promotes dialogue, understanding, and compromise, reducing the chances of conflicts escalating into violence. एकीकरण, संवाद और समझौते से किसी भी संघर्ष को शांतिपूर्वक हल करने में हेल्प करता है. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर आप उसमें नेशनल इंटीग्रेशन वाली फीलिंग ऐड करेंगे या उसको उसके बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही पीसफुली चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं क्योंकि हम एक दूसरे की चीजों को समझते हैं और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हम रिजॉल्व कर सकते हैं. स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. Democracy thrives when there is a strong sense of national integration. It ensures that people from all backgrounds participate in the democratic process and work together with common good. National integration is a safeguard against the decisive forces that can weaken the democratic fabric of a nation.
नेशनल इंटीग्रेशन लोकतंत्र को मजबूत करता है। जब हम सभी लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेते हैं तो लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। ये इंश्योर करता है कि हर बैकग्राउंड के लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आप क्या समझते हैं? जैसे वोट डालना, कोई भी इलेक्शन हो रहा हो, तो अगर हम सब उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, वोट करेंगे, तो हम एक मजबूत सरकार सेलेक्ट करके ले आते हैं जो सबके कॉमन गुड के लिए काम करती है। नेशनल इंटीग्रेशन इज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द डिसेसिव फोर्सेस दैट कैन वीकन। अगर हम नेशनली इंटीग्रेटेड हैं, एकजुट हैं, तो हमारे लोकतंत्र के लिए जो भी चीजें खतरा है, उनसे हम मिल के लड़ सकते हैं। International standing. The United Nations often has more credibility and influence on the international stage. It can negotiate effectively from alliances and participate in global affairs with a strong united voice. एक संगठित नेशन यानी कि राष्ट्र हमेशा विश्वास के योग्य होता है और उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है इंटरनेशनल स्टेज पर। जब हम यूनाइट होकर अपनी बात एक स्ट्रॉन्ग आवाज में रखते हैं, तो लोगों को हमारी बात सुननी पड़ती है और हम अपनी शर्तों पे नेगोशिएट कर पाते हैं ग्लोबल अफेयर्स में। पीपल एंड सिक्योरिटी, सॉरी, पीस एंड सिक्योरिटी. National integration is crucial for the maintenance of peace and security. A divided nation is vulnerable to external threats and internal conflicts. The United Nations, on the other hand, is more capable of defending its sovereignty and maintaining peace within the borders. एकजुट राष्ट्र आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों का सामना बहुत ही सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डिवाइडेड होते हैं तो हम खतरों के वल्नरेबल होते हैं, यानी हम पे खतरे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब हम यूनाइटेड होते हैं तो हम उन्हीं खतरों का सामना बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर। चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन. सेवरल फैक्टर्स चैलेंज नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया. भारत में बहुत फैक्टर्स हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक चैलेंज है। कुछ फैक्टर्स इसमें से हैं रीजनलिज्म. लॉयल्टी टू अ स्टेट और रीजन ओवर द नेशन कैन क्रिएट सब नेशनल टेंशंस ऑब्जेक्टिव्स. रीजनलिज्म क्या होता है? क्षेत्रवाद. अपने राज्य को अपने देश से ऊपर रखना, इसको कहते हैं रीजनलिज्म. कम्युनलिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड कम्युनल वायलेंस थ्रेटन्स द यूनिटी. रिलीजियस इंटॉलरेंस का मतलब धार्मिक असहिष्णुता. कम्युनल वायलेंस मतलब किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड वायलेंस. ये सब जो चैलेंजेस होते हैं, ये हमारी यूनिटी, हमारी एकता के लिए खतरा है. कास्टिज्म, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट हिंडर कोहेशन. जाति के आधार पर भेदभाव होना भी हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक चैलेंज है. लिंग्विज्म, dispute over language dominance such as Hindi versus non-Hindi debate can create frictional society. भाषा को लेकर अगर विवाद करेंगे कि हिंदी या नॉन हिंदी डिबेट होती है, तो ये हमारी सोसाइटी में फ्रिक्शन क्रिएट करता है, मतलब हार्मोनियस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैन फ्यूल सेपरेटिस्ट एंड एक्सक्लूजनरी मूवमेंट्स. अगर विकास में असमानता होगी तो इससे सेपरेटिज्म और एक्सक्लूशनरी मूवमेंट्स को बढ़ावा मिलता है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए. स्ट्रेटेजीज फॉर प्रमोटिंग इट. इफेक्टिव नेशनल इंटीग्रेशन रिक्वायर्स active participation from all citizens, including politicians, educators, media, and families. किसी भी कंट्री के अगर नेशनल इंटीग्रेशन को इफेक्टिवली प्रमोट करना है, तो सबका, हर एक सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है. वो सिटीजन कोई भी हो सकता है, वो पॉलिटिशियन हो सकता है, वो एजुकेटर हो सकता है, वो मीडिया पर्सनल हो सकता है, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में रहने वाले हर एक सिटीजन का ये कर्तव्य है कि वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए प्रमोशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे. प्रमोटिंग एजुकेशन अवेयरनेस अबाउट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. एजुकेशन और अवेयरनेस से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता है, उसको प्रमोट करना.
encouraging equitable development to reduce regional disparities. रीजनल डिस्पैरिटीज यानी कि जो हमारे राज्य स्तर पर एक दूसरे से क्षेत्रीय समानताएं हैं उनको कम करना। किससे कम करना? डेवलपमेंट बराबर तरीके से हो, हर क्षेत्र में इक्विटेबल यानी कि इक्वल डेवलपमेंट को इनकरेज करके। फॉस्चरिंग इंटर कम्युनिटी डायलॉग एंड कल्चरल एक्सचेंज। इंटर कम्युनिटी डायलॉग का मतलब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से बात करे, सिर्फ अपने डिफरेंसेस को लेकर ही नहीं, उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हुए चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी डायलॉग करे। और कल्चरल एक्सचेंज भी हो। अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ सेकुलरिज्म, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। धर्मनिरपेक्षता, न्याय और बंधुत्व को अपनाकर हम इंटीग्रेशन को प्रमोट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कंक्लूजन नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक का। जो भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखा रही हूँ वो टॉपिक वाइज आप एज इट इज अपने एग्जाम में नेशनल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। पॉइंट्स आप याद कर लीजिए और बाकी अंदर की जो भी कंटेंट है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप अपने वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हैं। जितने अच्छे से आप पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपका होता है उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। देखते हैं कंक्लूजन क्या है। नेशनल इंटीग्रेशन इज नॉट merely a political or legal construct but a socio-psychological bond that unites citizens across different। राष्ट्रीय एकीकरण केवल राजनीतिक या कानूनी बात नहीं है, ये एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बंधन भी है। In a diverse country like India, the need for national integration cannot be overstated. It serves as a glue that holds together a vast and varied population. National integration is not about erasing differences, but about celebrating and respecting them while working together for the greater good. It is cornerstone of a social harmony, economic development, political stability, and overall progress. Therefore, fostering national integration should be a collective endeavor with each citizen playing a role in building a stronger, more united India. Only through national integration can country unlock its true potential and emerge as a powerful and peaceful nation on the global stage. Hence, the need for the national integration is very important for any country. भारत जैसे विविध देश में ये बहुत जरूरी है। यह मतभेद मिटाने की बात नहीं करता है, बल्कि मतभेदों का सम्मान करते हुए एक साथ चलने की बात है। एक मजबूत एकजुट भारत बनाने के लिए हर नागरिक का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तभी हम वैश्विक मंच पर एक शक्तिशाली और शांतिपूर्ण राष्ट्र बन सकते हैं। अनेकता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी पहचान है और हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी ताकत है। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो भारत और स्ट्रांग बनता है और नेशनल इंटीग्रेशन यहीं से स्टार्ट होता है। आवर डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। व्हेन वी स्टैंड टुगेदर, इंडिया ग्रोज स्ट्रॉन्गर और नेशनल इंटीग्रेशन बिगिंस विद ईच वन ऑफ अस। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हूएवर नीड्स इट। अगर आप बीएड कर रहे हैं या टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और अपने वर्ड्स में भी लिखते हैं तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।